कंफर्टेबल होना यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लाइफ में। आप कंफर्टेबल हो गए अगर तो आपकी लाइफ वहां पर डेड है मेरे हिसाब से तो। सडनली भाई कोविड आ गया एंड आई गॉट स्टक हियर एंड आई वाज लिविंग इन द शेयरिंग अपार्टमेंट विद माय फ्रेंड्स। 2.5 years back I met Vivek through one of my common friend and we discussed a lot कैसे करना है क्या करना है and somehow we both were interested and one day we decided ठीक है साथ में करते हैं। By December 2020 I came to know भाई मेरी कैपिटल हो गई जीरो। Oh my God. That no thing coming in there। रास वेगस बनने वाला है वो। Las Vegas. That's nice. Las Vegas. Hottest जगहें कहाँ हैं UAE में to invest? अगर मैं अनबायस्ड होके बोलूँ आपको बिल्कुल हाँ तो unbiased होके तो बेसिकली Hello Hi, man, how are you Ankur. man? Nice to meet you man. Good How to are see doing? you. Great. Very excited to have you on board, man. Pleasure. Let's ride. Come. Oh man. Welcome. Hello. Hi guys, welcome back to the Dubai journey. Today we're not just talking about real estate, but building legacies. And to talk about that is none other than Ankur Agarwal, who is the founder and chairman of BMW. Welcome on the Dubai journey, Ankur. How are you man? Thank you so much. सबसे पहले मैं Thank बताना you चाहता for हूँ सबको having me here bro. Thank कि you. Loving this. दिल्ली का लड़का है सबसे बड़ी बात आई रियली लाइक दैट और दिल्ली से आकर दुबई में आप छा गए हो Thank you bro. तो Thank you. मेरे को यहाँ पे कुछ टाइम हो गया और मैं काफी इवेंट्स पे जब जाता हूँ मेरे को काफी आप लोगों की प्रेजेंस वहाँ पे फील होती है या आपने वहाँ पे स्पॉन्सर कर रखा होता है या प्रमोट कर रहे होते हो सो जस्ट वांट टू से दैट व्हेन यू सी समबडी फ्रॉम योर ओन कंट्री डूइंग वेल अब्रॉड तो वन फील्स प्राउड Thank you man. Thank you. लेकिन It means a lot to me. लेकिन लोग तो अंकुर अग्रवाल द चेयरमैन द फाउंडर को अब देख रहे हैं बट इसमें बनने के लिए यहाँ तक पहुंचने के लिए जो स्ट्रगल्स और जो डिटर्मिनेशन और जो हार्ड वर्क होता है वो लोगों को नहीं पता है और हमारा यही मकसद है दैट वी नीड टू नो हु यू आर हाउ यू गॉट हियर सो इतना मुझे पता है दैट यू फ्रॉम दिल्ली बट टेल मी व्हाट डू यू हाउ डू यू स्टार्ट वेयर डू यू ग्रो अप एंड क्या पढ़ाई की भी कि नहीं की नॉटी थे व्हाटएवर राइट सो जस्ट दैट मैन वेयर डू यू ग्रो अप In the initial days, I lost my father when I was very young, like 6 years old. oh man that's tough And yeah, that was quite tough, but it was quite okay for me because at that time I was not having any kind of comparison. So I enjoyed my life there as well. But as I grew up, तो दिल्ली में journey- कहाँ पे where did you grow up So basically, I'm from Pitampura. अच्छा। So we were in Rohini and then we came to Pitampura. So my father was having business there. और उसके बाद when I grew up, I came with my mother to Rohini and then we moved to Pitampura. So right now we also have one house in Pitampura as well. जाते हो वहाँ पे हाँ, I used to go there. I love going there. My wife, my mother, they are loving it and they usually like quite often visit the place there. तो Okay. basically मेरा जो academic background रहा है वो बहुत strong रहा है. Okay. बहुत ही strong था मेरा academic background because of my sister. She was very brilliant student and she used to pump me, push me always like to be the best. तो Really? हाँ, so मुझे याद नहीं पड़ता है कि मतलब academically मुझे कब challenge आया. Most of the time I secured first rank in my school. Most of the time. really Yeah. that's amazing man Yeah. So and क्या but what did you want to be when you were studying so well you had See- sisters आपको see- बनना क्या था बड़े होके So basically, my wish was to be entrepreneur all the time because my father was entrepreneur. मुझे business करना था, क्या करना था ये नहीं मालूम, कैसे होता है ये भी नहीं पता था, बट बिजनेस करना था. बिजनेस के लिए पैसे नहीं थे, कोई कांटेक्ट नहीं था, कोई रिलेशनशिप नहीं था, कुछ भी नहीं था, बट बिजनेस करना था. एक Okay. जुनून था, एक अंदर से आप कह लो कि फायर थी बेसिकली कि मुझे बिजनेस करना है. तो बस इतना ही मेरे को मालूम था. सो व्हेन आई cleared my 12th class, like my schooling. So I have been asked by my cousin Vijay Agarwal भैया ने बोला कि अंकुर come and let's do the CA. CA हाँ, तो मैंने कहा भैया are you sure? He said yes. So from the very next day he called me in his office. Before even starting officially my articleship, I started my training with my cousin. तो वो क्या कर रहे थे
he was a very successful chartered accountant. He is a very successful chartered accountant. मेरी मौसी के बेटे मतलब भैया ने मुझे बोला, मैंने कहा ठीक है भैया। अच्छा आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था ना दूसरा, आप करोगे क्या? तो आपके नहीं, पर जो पढ़ाई में अच्छे बच्चे होते हैं उनके पास सब ऑप्शन होते हैं कि उनको डिसाइड करना है। भाई ऐसा सच नहीं है। अच्छा। बहुत से अच्छे बच्चे हैं, बहुत जो पढ़ाई में- अकेडमिकली स्ट्रॉन्ग बच्चे हैं, बट उनके हाथ में नहीं है कि वो क्या करना चाहते हैं, बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस फाइनेंशियल रीजन, फैमिली रीजन, Fair. सोसाइटी रीजन, मल्टीपल थिंग्स। बच्चों की इच्छा के हिसाब से अगर जिस दिन सब कुछ होने लगा भाई, उस दिन तो ये सोसाइटी का प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगा। अब सीए में आने के बाद भी आपके पास को आपको ये नहीं पता था कि फ्रॉम वेयर यू गोना गेट द कैपिटल और डू अ बिजनेस। भाई बिजनेस की तो बात ही नहीं थी उस टाइम पे। मतलब आपको तो पहले सीए परस्यू करना था। सीए परस्यू करने में 5 से 6 साल लगते हैं, उसमें भी पैसा चाहिए। ऑल्दो इट्स नॉट लाइक एनी अदर कोर्स इन इंडिया विच इज वेरी एक्सपेंसिव। और जब ये सीए चल रहा है तो आप काम कर रहे हो अपने कजिन के लिए साथ उनके ऑफिस हाँ, मैं उनके साथ बेसिकली एट दैट टाइम इट वाज अ ट्रेनिंग काइंड ऑफ, में। जिसमें मुझे सीखना है, काम करना है, मतलब हाउ ही वाज डूइंग प्रैक्टिस एंड ऑल दिस थिंग्स। सो बट मैंने बहुत कुछ सीखा उस टाइम पे, और जो मेरी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स हैं वो वहाँ पर थोड़ी डेवलप हुई अच्छे से, बिकॉज आई यूज्ड टू ऑडिट द एंटरप्रेन्योर्स। तो मेरे को बहुत डिटेल में जाने का मौका मिला, मैंने बहुत सारी Around चीजें what देखी। time is this when you started? 2005। हाँ, तो इट्स लाइक 20 years ago। तो मैंने वो शुरू किया, उसके बाद आई क्वालिफाइड इन 2011। Okay. हाँ, सो जो अभी आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा, पढ़ाई की नहीं की, हाँ, तो काफी यार। काफ़ी पढ़ाई की। You were good at studies and also you were good at studies. तो बेसिकली मैंने शायद इंडिया का सबसे टफ कोर्स है हमारा सीए, अभी भी है। आई क्वालिफाइड एज चार्टर्ड अकाउंटेंट इन 2011। फिर भैया के साथ मैंने कुछ 4-6 महीने दोबारा से काम किया। देन आई स्टार्टेड माई ओन प्रैक्टिस इन दिल्ली। तो वो मेरे लिए बेसिकली एक एंटरप्रेन्योर जर्नी शुरू हुई। की शुरुआत थी। And then how you started getting clients? हाँ, तो बेसिकली आई गॉट वन पार्टनर एट दैट टाइम, अंकुश। तो अंकुश वाज माय क्लासमेट इन माय सीए स्टडीज। तो अंकुर और अंकुश ने अंकुर और अंकुश ने कंपनी बनाई, अंकुर अंकुश एंड कंपनी, AAC। नाइस। तो हमने कंपनी बनाई, उसके बाद बहुत अच्छा काम किया। 1 साल बहुत अच्छा काम किया, मतलब शायद जहाँ पर आपको जाने में 5-10 साल लगते हैं, वो हमने 1 साल में पूरा कर लिया। बट फिर अंकुश की एस्पिरेशन डिफरेंट थी, उसको बिजनेस करना था, उसका फैमिली बिजनेस था। तो ही आस्क्ड मी कि आई वांट टू डू बिजनेस। मैंने कहा ठीक है। तो आई स्टार्टेड माय ओन प्रैक्टिस देयर ऑफ माय ओन, लाइक इंडिविजुअल। तो अंकुर अग्रवाल एंड कंपनी बना दिया हमने, अंकुर अंकुश एंड कंपनी को। तो फिर से क्या बना, AAC। तो AAC रहा। ठीक है। तो हमने इसको ब्रांड बना दिया एक तरीके से, AAC, अंकुर अग्रवाल एंड कंपनी। तो भाई मैं ये बोलूँगा, प्रैक्टिस मैंने जितने भी टाइम करी दिल्ली में, मेरी जो जर्नी रही है ना, उसमें हर साल मुझे ऐसा लगता था कि यार ये एक नया बेंचमार्क हमने बना दिया है। मतलब अचीवमेंट्स पे अचीवमेंट्स हो रही है, यू Achievements जस्ट हो- डूइंग वेल। हाँ, है ना, यू लाइक यार ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन उससे भी अच्छा कर रहे हैं, उससे भी अच्छा कर उससे रहे हैं। भी अच्छा हुआ, हमेशा अच्छा हुआ। मतलब प्रैक्टिस बहुत अच्छी हुई, बाय गॉड ग्रेस आई मतलब वो गॉट जितनी पढ़ाई की थी उस सब का मतलब फल, जो मेहनत की थी उसका फल आपको हाँ आना भाई, शुरू हुआ। हाँ भाई, देखो प्रैक्टिस में क्या होता है कि जो है ना, काम को ऐसे करना होता है। मतलब इट्स लाइक ए मैसेज टू ऑल माय सीए फ्रेंड्स एज वेल हु वाज डूइंग प्रैक्टिस, हु इज डूइंग प्रैक्टिस, कि जब बिजनेस को आप अपना समझ के करते हो ना, एंड यू विल, व्हेन यू विल फील द पेन ऑफ दैट क्लाइंट, देन यू विल बी एबल टू डिलीवर। तो मेरा ना एक इमोशनल अटैचमेंट रहा है हमेशा मेरे क्लाइंट्स के साथ। तो मैं उनको समझता था, उनके लिए आउट ऑफ द बॉक्स जाने की कोशिश करता था। ठीक है, आप यू आर एक्ट एज अ रेगुलेटरी ऑल्सो, तो यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपको वो भी समझना है, बट यू हैव टू बैलेंस आउट द सिचुएशन। तो वो बेसिकली हमारे लिए एक, आप कह सकते हो कि बहुत अच्छा फेज था, जो मैंने 7-8 साल बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करी। तो जब वो प्रैक्टिस इतनी अच्छी चल रही है, वो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि सीए बनना इंडिया में और एक अच्छी प्रैक्टिस होना खुद में ही एक बहुत बड़ी चीज है। वो और अभी का ये जो तालमेल, बिल्डर कैसे बन गया है यार? हाँ, मैं बताता हूँ। हाँ। बेसिकली हुआ क्या ना भाई, देखो, जब आप एक बहुत ही हम्बल रूट से निकल के आते हो, तो आपको ना हर चीज़ अच्छी लगती है। आप कुछ भी अचीव कर लो, आप मारुति भी ड्राइव करोगे ना, आपको उसमें मज़ा आएगा। हाँ। ठीक है ना, आप कुछ भी इंजॉय करोगे, उसमें आपको मतलब ज़्यादा इंजॉयमेंट होगा बेसिकली, क्योंकि आपकी जो कंपैरिजन चार्ट है ना, वो बहुत खुद नीचे का, से है, yeah, exactly. वो बहुत नीचे से आता है। तो मेरे को बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। प्रैक्टिस करी, बहुत अच्छा किया। अब देखो, उसकी जो एक
लिमिट है वो क्या है आपकी प्रैक्टिस की, आप क्या कर सकते हो लाइफ में, आप उसके अंदर साल में 10-20 करोड़ रुपए नहीं कमा सकते। ओके, आप देयर इज अ सीलिंग। हाँ, वो सीलिंग आपकी 2-4 करोड़ से ऊपर नहीं जाएगी, चाहे आप कुछ भी कर लो। ये एक उसका लिमिटेशन है, ठीक है ना। अब देखिए क्या उस मैं 10-20 करोड़ क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम पे 10-20 करोड़ की एस्पिरेशन हो गई। अब जैसे अब ठीक है, आपके अंदर अगर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल है ना, तो आपको बड़े नंबर्स दिखाई देंगे, आप रोक ही नहीं सकते उसको, और वो अच्छी बात है, वो देखने भी चाहिए। तो अभी हम उसको अचीव करे जा रहे हैं, बट उसकी एस्पिरेशन इतनी हाई हो गई है कि अभी आपको एक्सपैंड करना है। अब आप क्या करोगे, कंफर्टेबल होना, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लाइफ में। आप कंफर्टेबल हो गए अगर, तो आपकी लाइफ वहां पर डेड है मेरे हिसाब से। तो although I was having a base in India and I kept my base for few years as well, but I thought कि यार अब मुझे थोड़ा सा एक्सपेंशन करना है। And at that time Dubai was the easiest. दुबई की इकोनॉमी is booming like anything after 2008. दुबई के अंदर आपकी कम्यूटेशन आसान है because of like 3 hours flight. Yeah. And you will find lot of friends in Dubai, of course. दुबई में आके ऐसा नहीं लगता कि आप एक फॉरेन कंट्री में, बहुत इंडियंस हैं, बहुत इंडियंस है, खाना है, 40% बहुत कुछ, पॉपुलेशन इंडिया है। हाँ, तो हर चीज इजी थी, तो मैंने कहा लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दुबई। तो मैंने दुबई में मैं आया, आई केम हियर फर्स्ट टाइम इन दिसंबर 2018। आई एक्सप्लोर्ड इट अ लिटिल, मतलब इट वाज वेरी टफ एट दैट टाइम भाई, क्योंकि कोई आपको सपोर्ट नहीं करता। आप ये समझ लो, आपके चाहे 10,000 फ्रेंड्स यहाँ पर हो, नॉट अ सिंगल विल सपोर्ट यू। यू हैव टू मेक इट वेरी क्लियर। और जो वहाँ पे इंडिया से लगता है लोगों की वो दुबई में रह रहे हो, दुबई सब यहाँ पर इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है, ठीक है ना। हाँ, बट आई केप्ट ऑन कमिंग इन 2019 में मैं आता रहा, मैं एक्सप्लोर करता रहा। अच्छा, माइंडसेट क्या था, माइंडसेट ये था कि भैया चलो लेट्स एक्सपैंड आवर प्रैक्टिस थिंग, कि यहाँ पर भी अभी वो लिटिगेशन, वो कंप्लायंस, वही प्रैक्टिस अपने को करनी है, वही सब करने का मन था, क्योंकि उससे ज़्यादा कुछ आता ही नहीं था। आप जो भी बिल्डर की बात कर रहे हो या डेवलपर, इसका तो कोई दूर दूर तक कोई सपने में भी नहीं था कि मतलब ये हो कैसे सकता है भाई। अभी क्या हुआ कि ऑफिस भी हो गया था, चलो आते रहते थे, मीटिंग करते रहते थे, सडनली भाई कोविड आ गया एंड आई गॉट स्टक हियर एंड आई वाज लिविंग इन द शेयरिंग apartment with my friends. I was stuck here for 4 months. Flights were closed, everything were closed. मैं इधर 4 महीने था, and भाई this country has performed phenomenally well during the COVID times, and luckily we did not even felt that the COVID has happened in this country. It was quite like 15 days lockdown only at that time, and I was like, okay. And outdoor activities were allowed. You Everything was allowed. Sports, yeah, although it was little bit restricted, but it was well managed. और यहाँ पे जब vaccination भी आई थी, everybody got them vaccinated also. Yep. Everything was so easy, and I thought, man, let's take the best advantage of this situation. And I found few friends here who are doing real estate. Actually, I found one guy who was living in my building only. And he explained me all the system of this real estate. You can see the BMW there. उन्होंने basically मुझे समझाया कि भैया कैसे कैसे real estate का काम होता है, ये है वो है. And I compared it with my practice thing, and I thought, man, this is the thing which I can try. Okay, at that time, bro, I was having little capital of around 50 लाख रुपया. तो जो भी पैसा था भाई वो लगा दिया मैंने उस भाई के साथ अपने, और वी स्टार्टेड दिस रियल एस्टेट थिंग इन अगस्त 2020. ओके बाय दिसंबर 2020 आई केम टू नो भाई मेरी कैपिटल हो गई 0. ओह माय गॉड. और आई वाज इन अ वेरी बैड सिचुएशन. मुझे लगा कि आप बोलने वाले हो कि भाई बाय 2020 सब अभी ये मूवी में वो है ना भाई, ट्विस्ट तो मैंने कहा कि भाई ये क्या हो गया मेरे से. एंड बहुत मुश्किल हुई भाई उस टाइम पे, क्योंकि पहले ही मुश्किल चल रही थी, अब और भी मतलब और मुश्किल हो पैसे बचाए थे वो भी गए, और प्रैक्टिस में जो मैं थोड़ा बहुत कर रहा था वो भी छूट गया, बिकॉज आई वाज पुटिंग ऑल माय एफर्ट्स देयर. फोकस मेरा उधर चला गया. तो मैंने कहा यार ये क्या हो गया मेरे साथ. बट आई स्टार्टेड अगेन ब्रो इन 2021. आई फॉर्म दिस कंपनी ब्रिक्स एंड वुड्स रियल एस्टेट ब्रोकरेज LLC. मतलब B&W, ब्रिक्स एंड वुड्स. B&W नहीं था, ब्रिक्स एंड वुड्स था. B&W ये बाद में बना. तो बेसिकली हमने बनाया इसको ब्रिक्स एंड वुड्स, कंपनी बनाई. मेरी वाइफ ने बोला ये नाम अच्छा है, मैंने कहा ठीक है चलो.
इस नाम से शुरुआत करते हैं। भाई हमने शुरुआत करी इस नाम से, अकेले शुरुआत करी उस टाइम पे। 4 महीने लगे पहला एम्प्लॉय ढूंढने में, क्योंकि किसी को यही विश्वास नहीं था कि हम सैलरी दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। अप्रैल 2021 से लेकर के और दिसंबर 2021 तक हम दुबई के टॉप 5 ब्रोकर्स में पहुंच गए। Wow, that was a boom 25 time. साल That की was a- जर्नी जो थी ना भाई, 25 साल की जर्नी 10 महीने में पूरी करी थी, 8 महीने में। So then, this is an amazing story यार, because आप you know जब लोग सक्सेस के लिए ढूंढ रहे हैं कि यार क्या बिजनेस करें, then they stumble upon something, but you were already successful, but your aspirations were high, तो आपने कहा कि कुछ और करते हैं, ढूंढा आपने, यूरोप गए, यहाँ आए, then you figured out real estate, and then finally you're now a developer. भाई देखो क्या होता है ना, जो एस्पिरेशनल लोग हैं, जिनकी लाइफ में कुछ एम है या कुछ चाहते हैं या कुछ, मेरे को लगता है सब लोग ऐसे ही होते हैं यार। कुछ लोग जताते हैं, कुछ नहीं जताते हैं। हर बंदा बड़ा बनना चाहता है यार, कौन नहीं चाहता है। मेरे पास कुछ सवाल है आपके लिए। हाँ भाई। दुबई ग्लोबल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करता है, ऐसा क्यों? दुबई एक एमिरेट है, जस्ट लाइक अबू धाबी, शारजा, Yeah. रासल खेमा, ठीक है ना। अभी क्या है भाई, ये जो यूएई के जो रूलर्स है ना, दे आर द मोस्ट विजनरी पीपल ऑन दिस अर्थ, ठीक है। अगर आप पिछले अगर 30-40 साल की हिस्ट्री उठा के देखोगे ना, तो व्हाट दे हैव डन ना, आई थिंक नोबडी कुड एवर थिंक Think of अबाउट इट। वो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। सो बेसिकली वो सोचते भी हैं और वो कर भी देते Execute भी हैं, और करते उसके बाद आगे चलते हैं, नया सपना देखते हैं और उसको भी पूरा कर देते हैं। तो बेसिकली वो सब कुछ आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं जो आपको एक काम बिजनेस करने के लिए जरूरत है। अब आपको दुबई में आना है या यूएई में आपको आना है, आपको क्या चाहिए भाई? आपको अपॉर्चुनिटीज चाहिए जो यहाँ पर भर भर के हैं। अभी मैं उसके बारे में बताता हूँ। आपको सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए, वो यहाँ पर है। एवरेज पर कैपिटा इनकम आपकी बहुत हाई है। आपका जो करेंसी है वो डॉलर के साथ पैक्ड है, यानी कि कोई फ्लक्चुएशन का रिस्क ही नहीं है आपको। इनफैक्ट अगर आप इंडिया से आके इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा बढ़ ही रहा है, क्योंकि आपको वो जो डॉलर रिटर्न्स है वो तो वैसे भी मिलने वाले हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे ऐसा लगता है कि बेस्ट इन द वर्ल्ड है। मैं कहता हूँ सिंगापुर से भी अच्छा है, हांगकांग से भी अच्छा है। आप वेस्टर्न कंट्रीज को तो छोड़ ही दो, ठीक है ना। लंदन या फिर सेफ्टी में ही, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज को तो वैसे ही सेफ्टी में आगे लेके, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर देखना ही क्या है ना। हाँ, उसमें भी अच्छा है, ठीक है ना। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, मेरे को तो ऐसा लगता है। हाँ। अभी तो वर्ल्ड के बेस्ट एथलीट्स आके यहाँ पे ट्रेन करते हैं, सब कुछ है ना। उसके बाद आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है वो बहुत हाई है। इसका क्या मतलब है, जो आप पैसा खर्च रहे हो उस पैसे की आपको वर्थ मिल रही है, आपकी फैमिली यहाँ पर खुश है। एजुकेशन जबरदस्त, ठीक है ना। लाइफस्टाइल ऑफ कोर्स मैंने बताया आपको। हेल्थ केयर, मैं ये नहीं बोलूंगा बेस्ट इन द वर्ल्ड, बट दे आर वर्किंग ऑन इट। दे आर वर्किंग। जब से कोविड हुआ है, कोविड के बाद जब लोग यहाँ पे हाँ। आके सेटल होने लग पड़े हैं, वो गोल्डन वीजा जब शुरू किया, तो बहुत सारे गोल्डन वीजा इन्होंने मेडिकल डॉक्टर्स, डेंटिस्ट, ऐसे लोगों को दिए कि आप यहाँ पे आके सेटल हो। इंसेंटिव दिया है, बिकॉज उनको पता है कि बाकी लोग आके सेटल हो रहे हैं। हाँ। तो वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ बिल्डिंग बनाने का नहीं, एक अच्छी कम्युनिटी बनाने का, सब कुछ। बल्कि इतने लोगों को उन्होंने आपकी तरह फाइनेंशियल एडवाइजर्स, सीए, सबको वो गोल्डन वीजा के इंसेंटिव दिया कि आप यहाँ आओ, सेट अप योर शॉप हियर, बिकॉज यहाँ पे बहुत लोग आके सेटल हो रहे हैं, उनके लिए हमें बाकी इन चीजों की भी जरूरत पड़ेगी। अच्छा, अब देखिए आप कॉलेजेस वो एजुकेशन मैंने बोला ना, अभी सब कुछ यहाँ पर आ रहा है। अच्छा, दूसरा क्या, टॉलरेंस लेवल इज वेरी हाई। इसका क्या मतलब है कि मतलब प्रैक्टिकली 200 देशों के लोग यहाँ पे रह रहे हैं भाई। 200 देशों के लोग किसी दुनिया के किसी कोने में नहीं है। मतलब आपको हर एक नेशनैलिटी अगर चाहिए तो वो आपको यूएई में, दुबई में मिल जाएगा, है ना। Yes. So actually, I was going to ask you, what is it surprising, this trend or the numbers that you see here? But it is not, because जो आपने जवाब दिया उसी में इतना लॉजिक है कि ये सरप्राइजिंग नहीं है। इट्स नॉट शॉकिंग कि दुबई में इतना क्रेजी नंबर्स और इतना ये ट्रेंड बढ़ रहा है। ओके, नहीं, मैं उसके ऊपर बताता हूँ आपको। बेसिकली द पॉपुलेशन हियर इज गेटिंग इंक्रीज्ड एवरी डे। जो पॉपुलेशन ग्राफ है, जो मल्टीपल स्टैटिस्टिक्स डेटाबेस जो बोलते हैं, पॉपुलेशन यहाँ पर करीब दुबई की अगर मैं बात करूँ तो करीब 1.5 मिलियन पॉपुलेशन बढ़ जाएगी अगले 4 साल 5 साल में। अभी पॉपुलेशन है यहाँ पर 3.5 मिलियन, 3.5 मिलियन। 5 मिलियन पॉपुलेशन हो जाएगी अगले 5-6 साल, 4 साल 5 साल। इनका एम है 2030 के 7 मिलियन करना, डबल करना। 7 मिलियन करना है ना। तो इतने लोगों को एकोमोडेट करने के लिए जितने घरों की जरूरत है, अगर मैं बोलूं दिल्ली की पॉपुलेशन 6 करोड़ हो जाएगी, तो आप क्या दिल्ली को डेवलप कर सकते हो? नहीं, हम उधर तो जगह ही नहीं ना इतनी, वो तो इधर जगह है, इधर बनाने के लिए जगह है। उसकी एक और चीज मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो
इतनी तरक्की हो रही है, उसमें हमारे इंडियंस की बहुत तरक्की हो रही है. व्हाट इज द सक्सेस, व्हाट इज द सीक्रेट कि द देसीज आर डूइंग सो वेल हियर? भाई मैं जब सीए कर रहा था ना, या जब सीए बना था, तो मेरे को सब सीए नजर आते थे, डॉक्टर को सब डॉक्टर नजर आते हैं, ठीक है ना, ड्राइवर को सब ड्राइवर नजर आते हैं, अच्छा. एक्टर को सब एक्टर नजर आते हैं. अच्छा. तो हम इंडियंस को ना सिर्फ इंडियंस ही नजर आते हैं. यू आर सेइंग एवरीबॉडी इज डूइंग गुड ब्रो. ओके. सबको सबकी तरक्की हो रही है. डेफिनेटली उसमें इंडियंस का रोल बहुत ज़्यादा है, बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीज़न कि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है यहाँ पे. तो हमने भाई यहाँ पर 40% पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट किया. यहाँ पर अभी जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, इज इट ओल्ड मनी, इज इट न्यू मनी, और इज इट स्मार्ट मनी? कि क्या है ये, कि पहले से जिनके पास पैसा है वही इन्वेस्ट कर सकते हैं, या जो अभी भी कमा रहे हैं वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, या लोग जिनके पास है नहीं वो बोरो करके यहाँ पे डाल रहे हैं? What do you see? I will rather tell you कि it's a mix. Old money, definitely people are bringing in here because they find this place more comfortable to invest in. ठीक है. उनको बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं कि अभी जैसे रेंटल्स यहाँ पर 8-10% तक चले गए हैं. तो बेसिकली यहाँ पर बोरोइंग सस्ती है और रेंटल्स हाई हैं. तो इसके लिए और एप्रिसिएशन आपको मिल रही है बिकॉज ऑफ द लेस सप्लाई एंड हाई डिमांड. और ये बढ़ने वाली डिमांड, ये बढ़ती जा रही है ना. ये इसको रोक ही नहीं सकते, बिकॉज जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं उसका इम्पैक्ट है ये पूरा का पूरा. उसकी वजह से पॉपुलेशन आती जाएगी. तो अगर जैसे अभी तक से जिसने इन्वेस्ट नहीं किया यहाँ पे, और मैं यहाँ पे रहता हूँ, रहने के लिए नहीं, इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा एरिया है दुबई में या यूएई में जहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, जहाँ पर आपको या रेंटल रिटर्न्स आए या आपकी अप्रिसिएशन ऐसे हो कि आप उसको फ्लिप कर सकते? भाई देखो, अगर मैं अनबायस्ड होके बोलूँ आपको, बिल्कुल हाँ, तो अनबायस्ड होके, तो बेसिकली हर एरिया अच्छा है इन्वेस्ट करने के लिए. डिपेंड करता है आपकी पॉकेट साइज क्या है. ओके. और आपको बेसिकली क्या करना है. मैं आपको हर एरिया के अंदर आपको हर मॉडल्स फिट करके दे सकता हूँ. आपको मरीना में इन्वेस्ट करना है, मरीना कीजिए. डाउनटाउन करना है, बिजनेस बे करना है, आपको जेवीसी करना है, आपको फुरजान करना है, जबल अली करना है, आपको दुबई साउथ करना है, कहीं भी करना है, आपको रेंटल रिटर्न्स 8%, 7%, 10%, 9% आपको मिल जाएगा आराम से. डिपेंड करता है. आपकी जो बाइंग और एक्विजिशन है ना भाई, वो बहुत स्मार्ट होनी चाहिए. दूसरा, आपका एजेंट सही होना चाहिए. मैं आपको रादर ये एडवाइस करूंगा कि दुबई में कोई भी प्रॉपर्टी खरीदता है, बिना एजेंट के प्रॉपर्टी ना खरीदा है. खुद से मत खरीदो, ठीक है. दे दो एजेंट को, किसी ना किसी, यार आपको नहीं देना है एजेंट को तो डेवलपर दे रहा है ना पैसा. और एजेंट को अगर चलो सेकेंडरी में आप खरीद रहे हो, अगर उसको 2% कमीशन आपको देना भी है तो देना चाहिए. वो उसका राइट है, उसका हक है. वो आपके लिए मेहनत कर रहा है. मगर वो आपको वो चीज़ निकाल के देगा जो आप खुद नहीं निकाल सकते हो. वो आपको वो सारे फैक्टर्स बताएगा जो आप खुद से आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाओगे कभी भी. तो ऑलवेज बाय थ्रू एजेंट्स. हमारे जैसे एक ट्रेडिशनल एक माइंडसेट होता है ना, कमीशन बचानी है. मतलब बहुत सारे पैसे खर्च देने, लेकिन कमीशन बचा लो. इंडिया में 1-2% मतलब कि हाँ, 100-200 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद ली है, मगर 2% ब्रोकर को नहीं देना. अरे क्यों नहीं देना भाई? वही तो सारे पेपर वेपर सब चीजें निकाल के. पेपर की बात नहीं है, वो आपको एक्चुअली में आपका फायदा करवाएगा. और किसी न किसी पे तो आपको भरोसा करना ही पड़ेगा. आप ठीक है, आपको एक एजेंट से समझ में नहीं आता, 2, 4, 6 हमारे पास, मतलब वी हैव बहुत बड़ी एजेंट कम्युनिटी है दुबई में. रियल एस्टेट एजेंट्स, मतलब आई थिंक इट्स बहुत सारे लोग की डे जॉब है, पर शाम को रियल एस्टेट में बहुत लोग घुस जाते हैं, डबल जो जॉब्स भी कर रहे हैं. मोर देन 10,000 पीपल. क्या बात है. तो ये बताओ कि ये आपने बता दिया कि यहाँ पे बहुत स्कोप है, बट की हॉटस्पॉट्स फॉर लिविंग एंड की हॉटस्पॉट्स फॉर इन्वेस्टिंग क्या है? भाई डिपेंड्स ऑन योर पॉकेट. वो तो आपने, ठीक है ना. हाँ. मगर अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो राइट नाउ आई थिंक अल्मरजान आइलैंड इज द बेस्ट एरिया वेयर वी आर डूइंग मोस्ट ऑफ आवर डेवलपमेंट्स. ओके. बिकॉज ऑफ दैट थिंग कमिंग इन देयर. रास वेगस बनने वाला है वो. रास वेगस. दैट्स नाइस. रास वेगस. ठीक है ना. डिमांड वहाँ पे बहुत ज़्यादा है भाई. 8 मिलियन विजिटर्स आने वाले हैं. अभी हम चलेंगे, देखेंगे वहाँ पे 8 मिलियन विजिटर्स आएंगे. करीब 60-65 हज़ार हमें कमरों की ज़रूरत है. कैपेसिटी 22,000 है, बन रहे 5,000 है. तो मतलब क्या होगा मुझे तो समझ नहीं आ रहा है. बेसिकली देयर इज़ अ ह्यूज डिमांड. तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो अल्मरजान आइलैंड सबसे अच्छी जगह है, क्योंकि अगर आपको शॉर्ट टर्म रेंटल पे बिजनेस करना है, उसमें आपको 15-16% तक भी आप रिटर्न कमा सकते हो मेरे हिसाब से, अगर आप आज की बाइंग की अगर हम बात करें. और अगर मैं एप्रिसिएशन की बात करूं तो कुछ भी हो सकता है. मतलब इट कैन बी 3 times ऑल्सो बिकॉज ऑफ अगेन द लैक ऑफ सप्लाई देयर. तो
जब आप यहाँ पर अभी काम करते हो, आप देखते हो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, देखते हो लोग कहाँ रह रहे हैं, वो सब सही है, लेकिन आपकी जो पर्सनल लाइफ है यहाँ पर, वो कैसे, कहाँ पे हैंग आउट करते हो जब आपको अपना माइंड क्लियर करना होता है? भाई देखो तो सबसे व्हाट आर यू डूइंग? देखो भाई सबसे जो बेस्ट मेरा टाइम होता है वो फैमिली टाइम ही होता है हमेशा। हाँ, तो उस कहाँ क्या कर रहे हो फैमिली टाइम में, आप क्या कर रहे हो? भाई कुछ नहीं है, देखिए मी एंड माय वाइफ एंड वी आर लाइक दोस पीपल हु यू कैन सी दैट वेरी लेजी पीपल। ओके। हम लोग ना बहुत सुस्त लोग हैं जब हम घर में होते हैं। जब काम नहीं है तो घर में ही चिल करना हमें है। कुछ नहीं करना भाई। खाओ पियो, कुछ देखो। हाँ, खाओ पियो, मजे करो, बैठे रहो, अपना पूल एंजॉय किया अपना। आपको मतलब बेसिकली वी वांट टू बी इन द होम, वी वांट टू बी इन आवर प्लेस। घर भी तो अच्छा है आपका। यहाँ पे घर भी अच्छे हैं, जय माता घर में मजा आता है। जय माता दी। हाँ, गॉड ब्लेस एवरीबडी, बट यहाँ पे घर में रहने में मजा भी आता है ना, जगह है, हाँ, गार्डन है, हाँ। पूल है, आपने बोल दिया ऐसे ही पूल, बट हाँ लोग उसी के लिए कभी उनको कहीं जाना पड़ता है। पैसे देके। हाँ, हाँ। ठीक है भाई, घर ठीक है, चलो अच्छा है, सब ऊपर वाले का दिया, सब सेट है। तो हमें क्या है, घर में रहना ज्यादा पसंद है भाई। और जो मेरी एक्सटेंडेड फैमिली है, जो मेरे लोग हैं, जो मेरी बिजनेस फैमिली है, जो मेरे एम्प्लॉयज हैं, जो मेरे पार्टनर्स हैं, जो मेरे इन्वेस्टर्स हैं, जो जिन्होंने मेरे पे विश्वास किया है, जो मेरे साथ काम करते हैं, मुझे उनके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है। ठीक है, तो आप लोग डिनर्स पे जाते हो? नहीं, या कहीं नहीं बीच जाते हम बीच लोग, पे जाते हो? कहीं नहीं जाते भाई। हम लोग ऑफिस में ही बैठते हैं और ऑफिस में ही हम बेसिकली प्रोडक्टिवली टाइम को स्पेंड करते हैं इन अ लाइटर मूड। फ्यूचर प्लानिंग करना और उसको एक तरीके से शेप देना वो बहुत पसंद है। एक साथ सबको लेके आगे बढ़ना और उसकी बातें, वो बहुत मजा आता है ना है उसमें। हाँ, और लोगों की फैमिलीज ग्रो करें, हाँ। क्या कहाँ रहेंगे, ये हाँ। करेंगे। आई गेट इट, हम लोग के भी फ्रेंड सर्कल में ऐसे ही हम लोग बातें हाँ, करते हैं। हाँ। ये बताओ कि दुबई में ना, आई थिंक एक बहुत ही यूनिक चीज है कि यहाँ पे एम्बिशन बहुत है, लेकिन ट्रेडिशन को साथ लेके चलते हैं। इट्स नॉट कि एम्बिशन के चक्कर में अपने रूट्स और अपने ट्रेडिशन को भूल गए। दैट्स उसकी व्हाट इज द की टू दैट? भाई अगेन इट्स द इकोसिस्टम व्हिच गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी क्रिएटेड and they have a respect for their cultural values. They have not diluted it because of the other external factors. They कि respect वेस्टर्न it. कल्चर नहीं यहाँ पे आया, वेस्टर्न कल्चर इन्वेस्टमेंट है, हाँ, but वेस्टर्न कल्चर है, मैं ये नहीं बोलता वेस्टर्न कल्चर नहीं है, बट जो रूट्स है ना, जो हमारी जो बेसिकली यूएई की जो ट्रेडिशनल रूट्स हैं, ये इनफैक्ट मिडिल ईस्ट में हर जगह ही है। यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा है, बट मेरे को लगता है मिडिल ईस्ट में कहीं भी आप जाओगे वहाँ पर है। तो दे रिस्पेक्ट देयर ट्रेडिशनल रूट्स, देयर ट्रेडिशनल वैल्यूज, देयर बिलीफ सिस्टम, ये सब चीज़ों को बहुत पसंद करते हैं, मतलब उस पर विश्वास है। और जो नई जनरेशन है वो भी उसको लाइक करती है। तो जनरेशनल डाइल्यूशन नहीं है। हाँ, मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि काफी लोग जो हु आर डूइंग वेरी वेल, और ये अच्छी बात है, ये होना चाहिए। हाँ, दे हैव अ गुड बैलेंस ऑफ कि है सबके पास सब कुछ है, लेकिन ज्यादा फ्लैश नहीं करना है, ग्राउंडेड रहना है, ऐसा भी है। लेकिन अगर आप दुबई की इमेजेस देखें, जो लोग टूरिस्ट आते हैं, जो लोग, कुछ ऐसा भी है यहाँ का इमेज कि यार सब कुछ दिखाने का, ये है वो है, बट मुझे लगता है जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो ग्राउंडेड रहते हैं, जो जिनके यहाँ पे बिजनेसेस चल रहे हैं वो ग्राउंडेड रहते हैं, वो जरा फ्लैशी रहते हैं। और आपको क्या लगता है कि ये इसकी क्या वजह है, और ऐसा ही रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक, वेयर आर यू ऑन दिस? भाई देखो, ये बात ना कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक सही नहीं है। आई एम सॉरी। कुछ लोग बहुत फ्लैशी लाइफ यहाँ पे जीते हैं। मतलब मेरे को ऐसा लगता है दुबई इज नोन फॉर luxury cars, luxury homes, like the glitzy life, है ना। यहाँ पर कुछ लोग हैं, बट मेरे को ऐसा लगता है जैसे जैसे आप ग्रो करते जाते हो ना, वैसे वैसे आपका ये जो शो ऑफ सिस्टम है वो थोड़ा थोड़ा मेलो डाउन होता चला जाता है, कम होता जाता है। अगर मैं यहाँ पे लोकल्स की बात करूँ, जो मतलब बेसिकली ओरिजिनल एमिरातीज हैं, दे आर लीस्ट इनफैक्ट नियर टू जीरो इन द शो ऑफ। दिखता ही नहीं, उनको पता ही लगेगा आपको कौन नहीं, कभी पता नहीं लगेगा आपको। दे आर वेरी कनेक्टेड टू देयर रूट्स एंड दे आर लाइक यू नो वेरी रिच, बट यू कैन नॉट इमेजिन, मतलब वो ऐसा शो नहीं करेंगे उस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर भाई कोई लिमिट नहीं है, कोई पता ही नहीं आपको, अंदाजा ही नहीं कि क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो लोग फॉर्ब्स में भी नहीं है, आप ये समझ लो, वो लिस्ट में ही नहीं है, दे आर आउट ऑफ द बॉक्स। मतलब उनको आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कि उनकी नेटवर्थ कितनी है। मैं कहता हूँ $500 बिलियन भी अगर हो तो बड़ी बात नहीं है, आपको पता नहीं चलेगा। You cannot imagine. यहाँ पर अगर किसी को जीरो से शुरू करना हो, या जैसे आपने किया था, what are the challenges? Just if you to just point, ये 3 challenges हैं या 4 challenges to identify a business, to what are the challenges? भाई देखो, challenges as such यहाँ पे नहीं है, कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं।
सबसे पहला रूल आपको ये समझना है कि ये मार्केट ना बहुत मैच्योर्ड है, तो इसके अंदर ना आप बहुत ज़्यादा ट्राई करने की कोशिश मत करो, इनोवेट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश मत करो। मतलब अगर आप इनोवेट करना चाहते हो ठीक है, यू माइट बी लकी समडे, बट बहुत मैच्योर्ड मार्केट है, मतलब आपको इसकी डीप रूट्स पता नहीं चलेंगे। What does BMW mean to you? Is it just something that is work and I have to Family. establish this, or is it more than that? फैमिली, Family. इट्स लाइक फैमिली टू मी, इट्स लाइक पीपल्स इकोनॉमी टू मी। यार देखो, मेरे को ना एक बात समझ में आ गई है, अपने लिए बहुत कर लिया अब, लोगों के लिए, सबके लिए अब मुझे करने का बहुत शौक चढ़ा हुआ है, और मुझे करना है, सबके लिए करना है Where भाई। is this giving back? ये कहाँ से आ रहा है? भाई ये बचपन से है, Okay. ये बचपन से है, ये मेरा एक नेचर है। जो लोग मुझे पुराना जानते हैं वो सब इस बात को उनको मालूम है कि मेरा ऐसा नेचर है, गिविंग बैक मेरा है नेचर, और मैं बहुत इंजॉय करता हूँ इस नेचर को। मतलब मैं अपने जीवन को ना करण की तरह जीना चाहता हूँ, दानवीर करण की तरह जीना चाहता हूँ। अगर गलत भी है तो गलत के साथ भी जिंदगी भर खड़ा होने की हिम्मत होनी चाहिए आपके साथ। कि एक बारी प्रॉमिस कर दिया, हाँ। या एक बारी कमिटमेंट कर दी, तो हाँ। that's it. Wow. तो भाई ये जो पीपल्स इकोनॉमी वाला फंडा है ना, ये मुझे बहुत मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और मेरे को इसके अंदर जीना बहुत पसंद है। मुझे लोगों के लिए काम करना, एक स्टेज के बाद ना आपको ये रियलाइज़ ज़रूर होता है कि आप थक गए हो और आपको अब और इससे ज़्यादा कुछ ज़रूरत है नहीं। अपने लिए उससे ज़्यादा कुछ ज़रूरत आपको है अपने लिए चलो ये भी मान लेते हैं कि आपने अपनी फैमिली का ख्याल रख लिया और आगे जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी सॉर्टेड है। हाँ, अभी यार नेक्स्ट जनरेशन का भी यार क्या लॉजिक है, आप बताओ ना यार, ये लॉजिक ही गलत है। नेक्स्ट जनरेशन यार, हमको तो कुछ नहीं मिला नेक्स्ट जनरेशन में यार, बिल्कुल है ना। पूत का पूत तो क्यों धन संचय, पूत सा पूत तो क्यों धन संचय। भाई सही बात है। अगर अच्छा ही पैदा किया और अच्छी उसको परवरिश दे दी तो उसको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जरूरत ही नहीं है भाई। मैं क्या इस चीज में दिमाग लगाऊं यार, मेरा बेटे को, मुझे एक ही बेटा है मेरा, मुझे क्या पता उसे क्या चाहिए, ठीक है ना। मेरे को लगता है कि यार वो खुद ही नहीं कर लेगा सब कुछ, ठीक है, हम जो दे रहे हैं भाई, ठीक है, मगर यार व्हाट अबाउट दोस पीपल यार हु आर वर्क विद यू, हु हैव स्पेंट देयर लाइफ्स विद यू यार, उनकी भी तो फैमिलीज हैं यार। सबके फैमिली जैसे आपके धृतराष्ट्र थोड़ी बनना है। अगर 5,000 एम्प्लॉइज हैं, उनके बच्चे भी तो हैं, तो मतलब यू कैन इम्पैक्ट सो मेनी मोर पीपल। सबके लिए सोचो ना भाई, आप इक्वल रखो ना उस बात को। अभी अगर आपको कोई पूछे कि यार हॉटेस्ट जगहें कहाँ हैं यूएई में टू इन्वेस्ट, तो आप उनको क्या एडवाइस देते हो? देखिए, मैंने बताया पहली प्रायोरिटी मेरी अल्मरजान आइलैंड है राइट नाउ। देखो ये ना बड़ी सीजनल इकोनॉमी है, आप मान के चले कि यहाँ पे अभी जो है उसको आपको फायदा लेना है बेसिकली। 2 साल 4 साल के बाद वो इक्वेशन चेंज होती रहती है। हाँ, तो आप फिर कोई और एरिया तब तक डेवलप हो जाएगा। अभी पहले ये भी बोल रहे थे ना कि जो नया एयरपोर्ट आ रहा है उसके आसपास दुबई साउथ, वो होगा, थोड़ा वक्त लगेगा, वो भी होगा। ओके, तो वो कैपिटल आपकी इंक्रीज होती रहेगी, आप वहां से निकाल के एग्जिट करके यहाँ, मतलब यहाँ पे अभी चलता रहेगा। 3 मेन फैक्टर्स होते हैं भाई, देखो। हाँ। पहला फैक्टर है आपका रेंटल रिटर्न्स। अगर आपकी प्रॉपर्टी रेंट पे रहती है तो आपको एनुअली कितना पैसा कमा सकते हो, ठीक है। दूसरा होता है आपका कैपिटल एप्रिसिएशन, ऑब्वियसली आपको क्या एक्सपेक्टेशन है कैपिटल एप्रिसिएशन को भाई। और तीसरा होता है ईज ऑफ एग्जिट। जो प्रॉपर्टी होती है ना वो लिक्विडेट होनी बहुत ज़रूरी है। एसेट को हमेशा शॉर्ट टर्म ट्रीट करना चाहिए, लॉन्ग टर्म ट्रीट नहीं करना चाहिए। ये सबसे बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है कि हमारा एसेट लॉन्ग टर्म है, हमें लाइफ टाइम इस एसेट के साथ बिताना है। एक घर होता है, एक दुकान होती है जिसके साथ आप ठीक है लाइफ टाइम बिता सकते हो, मगर उसके अलावा जितना भी आपका एसेट होता है ना, बेस होता है, वो सब शॉर्ट टर्म होता है। उसको इन्वेंट्री की तरह ट्रीट करना चाहिए, ट्रेड करना चाहिए उसको। तो आपका जो एसेट है वो लिक्विडेशन उसका हो सकता है या नहीं हो सकता है। मतलब कि आज अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ गई तो आप 2-4 दिन में, 10 दिन में उसको बेच सकते हो या नहीं बेच सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फैक्टर अगर आपका सेट होता है तो वो प्रॉपर्टी अच्छी है। आप ये 3 फैक्टर्स को अगर आप ध्यान में रखो तो मेरे को लगता है कि आपका इन्वेस्टमेंट हमेशा सही रहेगा। ओके, काफी सारी बातें होगी, काफी सारी चीजें कवर होगी, बट मैं एक चीज पूछ रहा था, जो रसल खेमा है, अगर इसके बारे में आपको एक एलिवेटर पिच होता है ना, पिच करना है किसी को कि भाई रसल खेमा में डालो, और ये आपने मैंने ये भी सुना है that you had identified this area before others. So how did you do that? What is your emotional connect with that? And what is the 30-second elevator pitch for RAK? देखो 30-second elevator is like कि this area has evolved because of an obvious factor, that is and when the
will be coming, there will be a lot of tourists who will be coming to this place, and there is a huge scarcity of the infrastructure in terms of the residential apartment. Infrastructure is there, government infrastructure is there, but residential units बहुत कम है वहाँ पर. ठीक है. तो इसकी वजह से जब एकदम से पॉपुलेशन वहाँ पर बढ़ेगा, जो कि ऑब्वियसली बढ़ा है, अगर आपने मकाऊ का एग्जांपल देखो 37 टाइम्स वहाँ प्रॉपर्टी बढ़ गई थी ओवरनाइट. तो ये मिडल ईस्ट में आप की बात कर रहे हो, इसका मतलब आप समझ सकते हो कि किस लेवल का अट्रैक्शन आएगा. यू इमेजिन अबाउट लाइक ऑल दिस पीपल, लाइक चाइनीज लाइक पीपल एंड ऑफ कोर्स इंडियन पीपल, भाई दे विल, वो टूट पड़ेंगे सब लोग इस पूरी मार्केट के ऊपर ना. तो जब ये लोग वहां पर आएंगे, इनको उतनी जगह नहीं मिलेगी, तो जिसके पास जो होगा उसको उसका बेनिफिट होने वाला है. तो आप अगर आज इन्वेस्ट नहीं करते हो तो आप लेट हो, मतलब आप ग्रोइंग मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो. आप समझ रहे हो मेरी बात? आपको अपना L1 बनाना पड़ेगा. आपका ऑलरेडी लेट हो गया मैं. ऑलरेडी बहुत लेट हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर फिर भी आपको अभी एप्रिसिएशन है, मगर लेट हो, मैं मान सकता हूँ लेट हो आप. तो रसल खेमा की जो मार्केट है भाई, वो किसी के पकड़ में आने वाली नहीं है अगले 4-5 साल, 3 साल तक बिल्कुल नहीं. 2027 जब तक लॉन्च नहीं होता, जब तक तो बिल्कुल किसी के पकड़ में नहीं आएगी. तो ये मत सोचो कि लेट हो गए, अभी भी ले लो. लेना तो चाहिए भाई, ऑफ कोर्स. प्रोजेक्ट्स तो लॉन्च हो ही रहे हैं अभी, अभी और अट्रैक्शन आ रहा है. तो अच्छा, दूसरी बात देखिए ना, आप एक जगह मुझे पूरी दुनिया की बता दीजिए जहां पर सारे ब्रांड्स, इतने सारे ब्रांड्स हो. अब यू नेम द ब्रांड ब्रो, यू नेम द ब्रांड, आप नाम लेते जाओ भाई, दुनिया का हर ब्रांड वहां पर आ रहा है. अब ये आपको क्या लगता है, इन ब्रांड्स ने ड्यू डिलिजेंस नहीं किया होगा? ऑफ कोर्स किया. फिर ये ऐसे थोड़ा ना कहीं पहुंच, ऐसे थोड़ा ना पहुंच जाएंगे कहीं पे भी. हाँ. और अभी ये जो, और ऐसे पहुंच गए जब सब ये इतने दिग्गज लोग, तो इसको नीचे भी नहीं जाने देंगे. ये भाई पॉसिबल ही नहीं है. नीचे तो भाई लोग नहीं जाने देते ना. लोग देखिए, हर जो इकोनॉमी की ताकत होती है ना, वो लोग होते हैं. डेमोक्रेसी की ताकत भी लोग हैं. लोग उसको जाने नहीं देंगे. लोग उसको, मतलब इतनी उसके अंदर इनफ्लो आने वाला है, वो किधर जाएगा इनफ्लो? तो भाई डिमांड तो डेफिनेटली देखो बढ़ने वाली है, इसको तो कोई मतलब झुटला नहीं सकता है. तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये बेस्ट है भाई. और जो अभी आपने दूसरा क्वेश्चन पूछा भाई, अर्ली मूवर एडवांटेज का, तो जब मैं ब्रोकरेज प्रैक्टिस कर रहा था ना, कमिंग बैक टू दैट स्टोरी अगेन, तो तब मैंने एक न्यूज़ आर्टिकल पे रिलाई किया. अरेबियन बिजनेस में एक न्यूज़ आर्टिकल आया था 26 जनवरी ओके, कि आ रहा है. उस टाइम पे गेमिंग रिजॉर्ट बोलते थे, अभी भी गेमिंग रिजॉर्ट बोलते हैं, बट काइंड ऑफ कह सकते हो. ओके. इन्होंने बोला कि भैया ये अपना आपका गेमिंग रिजॉर्ट आएगा. तो उस टाइम पे फिर हमने लैंड खरीदनी शुरू करी. अच्छा, क्या बात कर रहे हो? हाँ, कितने टाइम पहले की बात है? 2022 आज 25 में भाई 3 साल हुए. हाँ, मतलब अर्ली टाइम. उस टाइम पे लैंड मिल रही थी, अब तो लैंड मिलना मिलेगी नहीं ना, मरजान में लैंड ही नहीं है. अभी देखो ना, लैंड की अगर आप बात करो, तो उस टाइम पे जो लैंड था, हमको 100 दिरहम पर स्क्वायर फीट ऑन GFA मिलता था. आज वही लैंड जो है 800 दिरहम पर स्क्वायर फीट ऑन GFA है. 8x तो वही हो गया. 8x तो वही हो गया भाई. अभी आपको मिलेगा ही नहीं लैंड, अभी भी नहीं मिलेगा आपको लैंड. देखो यार, आप जब इन्वेस्टर होते हो ना, तो थोड़ा रिस्क एलिमेंट उसमें डालना भी चाहिए. कुछ गट फीलिंग भी होती है, गट फीलिंग भी होनी चाहिए, और थोड़ा उसके अंदर आपको हल्का सा, मैं कहता हूँ कि आपको रिस्क फैक्टर डालो यार. वरना देखो, मोर द रिस्क हायर द रिटर्न्स. बिल्कुल ही अगर आप सोचो कि नहीं मुझे तो ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए, तो भैया फिर तो पैसे को फिक्स डिपॉजिट में रखो, बैंक में 4% इंटरेस्ट खाओ, मजे लो. ओके. 4% भी इसलिए बिकॉज़ साथ मिलेगा, बाकी तो आपका वो भी जाना है ना, टैक्स भी तो जाएगा भाई. हाँ. ओके, रैपिड फायर राउंड है. वन वर्ड आंसर या छोटा आंसर. UAE लैंडमार्क टू इन्वेस्ट इन? क्वेश्चन मार्क. क्यों? बिकॉज ऑफ द मल्टीपल फैक्टर्स जो मैंने अभी आपको बताए. रियल एस्टेट, मिथ और बस्ट? आई थिंक नन ऑफ देम. It's actually there to stay. It's a real thing. It's a reality. What is your guilty pleasure purchase? मतलब कि ठीक है, बाकी सब सही है, मेहनत करिए, लेकिन ये चीज तो खरीदनी है यार. ये मतलब एक आधा मैं गेस भी कर सकता हूँ, but what is it that you spend a lot of money on? यार सच Guilty बताओ pleasure. मेरे को, सच बताओ मेरे को, कुछ भी नहीं खरीदना है. पर खरीद चुके हो ना अभी ये गाड़ियां वाड़ियां? ये कुछ गाड़ी तो- गुड़ी भाई अलग चीज होती है, मुझे कुछ भी नहीं खरीदना है भाई. आपके परिवार की खुशी से ऊपर कुछ नहीं है, सच बता रहा हूँ आपको. ऐसी कोई इंडियन फिल्म जो आपको इंस्पायर करती हो? इकबाल. क्या बात करी है. वो इकबाल जो फिल्म है, उसमें श्रेयस ने क्या कमाल का कमाल मूवी है व्हाट अ मूवी इकबाल. वाओ. नागेश सर, शाउट आउट टू यू एंड इलाही मैम. लव यू मैन, यू डिड अ फैंटास्टिक जॉब. तो जब नागेश सर आएंगे यहाँ पे दुबई मेरे को मिलने, डेफिनेटली भाई. मैं My उनको pleasure. बोलूंगा कि आप My अपने pleasure. फैन हो, आप जरूर आके मिलना. थैंक यू. वाओ.
एक timeless business advice for somebody who's a new entrepreneur. Work for your ethics, bro. Work for your ethics and opt for your professionalism. Never dilute yourself with the situations. To clean your head space, जो आप कह रहे हो कि to have सुकून, a spot in Dubai that you go to. Home, Okay. my temple. Career changing habit. Invest time on yourself as well. Don't invest time in the people's always. Basically, you need to invest time in you. That will give you more confidence, and you will be getting more energy to work more, because you are the engine of your own business. You're also a very religious person. Yes, आज मतलब yes. निकलने से पहले जब हमने हाँ. बोला था आप बाहर आ रहे हो, जी, तो जी. इसे आप पूजा कर रहे थे. जी भाई, तो ये कब से शुरू से? ये बचपन से. ये मॉम हाँ, का मॉम घर पे and- भी ऐसा? हाँ, ये पूरा जो जिस माहौल में मैं रहा हूँ उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब, और इसको मैं प्रमोट भी करता हूँ, और बहुत चीज़ों में हम इन्वॉल्व भी होते हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज़ भी करते हैं, और मेरे को बहुत पसंद है ये चीज़, मतलब आप समझिए, मतलब मेरे को ऐसा लगता है ये मेरी रूट्स है. एक ना एक दिन भगवान के पास तो जाना ही है. बिलीफ सिस्टम कोई भी हो सकता है, रिलीजन कोई भी हो सकता है, बट भगवान के पास आपको जाना ही है. तो आपको मतलब भगवान के जितना आप नज़दीक रहते हो ना, उतना आपको अच्छा फील होता है. तो what does a day look like? What time do you get up? What do you do? Are you going to the site? Are you going to your office? Are you I get selling, up. I get marketing? up What is late always. Actually, I हाँ. sleep late. Okay. I'm kind of a night rider. that? So I used to sleep late. I used to wake up late. I need 10 hours sleep minimum. बहुत बढ़िया. ये तो मतलब जो ये ब्लेसिंग है, अगर आदमी सुकून तो है यार तुम्हारी लाइफ में, कैसी बातें कर रहे हो? हाँ. जो आदमी मेहनत करके फैमिली के साथ रहकर रात को सो के 10 घंटे सो सकता है, हाँ. ज़्यादा भी सो सकता हूँ मैं. तो उसकी लाइफ में तो सुकून है. और सोने में ही तो ये सब आपका पूरा जो रिप्लेनिश होती है बॉडी, हाँ. पूरी रिकवर होती है बॉडी, चाहे वो माइंड हो, चाहे वो आपके बॉडी जो भी आपने काम किया. दैट इज अमेजिंग यार. तो बेसिकली अगर इसको मैं कंसोलिडेट करूँ ना, तो आप ओवरऑल जो अपना टाइम है, वर्किंग जो आपका टाइम है, वो 10 घंटे भी अगर आप एफिशिएंटली निकालते हो ना, तो मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत है वो. 10:30 आई यूज्ड टू गो टू जिम. हाँ. I spend like 2 hours in gym workout, नाइस. and in winters I used to play cricket at night. अच्छा, क्रिकेट का शौक है? भयंकर शौक है भाई, बहुत 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 बड़े वाला कीड़ा है तो मैच वैच देखने जाते हो? भाई. खेलने जाते हैं. गुड यार. ये भी तो होना चाहिए कि काम किया. तो ये जब खेलने जाते हो तो वो जो BMW फैमिली बोल रहे थे, उसी में ही आपकी टीमें बटी हुई हैं? BMW अच्छा, की टीम है ना भाई. हम लोग समझ- टूर्नामेंट खेलते भी है, खिलाते भी हैं. अभी हमने लेजेंड्स कप किया, बहुत सक्सेसफुल टूर्नामेंट था. दुबई की सारी रियल एस्टेट कंपनीज को मर्ज किया, 32 टीमें बनाई, क्या बहुत बात है. बहुत अच्छा कप किया. क्रिस गेल भी आए थे, शिखर धवन भी था. श्री इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन. एवरी डे वी आर टॉकिंग, एवरी डे. ही इज आल्सो हियर. He is also here. He's based here ना. तो बहुत his wife is very close friend of my wife. तो बेसिकली क्रिकेट का बहुत ज़्यादा है. अभी मेरी ट्रेनिंग फिर से शुरू हो रही है, मतलब फ्रॉम नेक्स्ट वीक. सो क्या बात है. तो मतलब मुझे उसमें बहुत मज़ा आता है. फिर जिम के बाद आई यूज टू लाइक टेक शावर एंड 15 minutes फॉर माई प्रेयर, एंड आई हैव फर्स्ट मील ऑफ द डे, एंड देन आई स्टार्ट माई डे. ठीक है, बहुत बढ़िया. सही है. अभी आपके मतलब यहाँ पर जो दोस्त बने, मैं सुन रहा हूँ कि श्री इज अ फ्रेंड ऑफ यू, इज अ क्रिकेटर. तो ऐसे यहाँ पर अभी कितने लोग हैं जो इंडिया से आकर सेटल हुए आपके सामने? व्हाट डू यू थिंक कि ये दिस विल बी अ प्लेस जो, क्योंकि आप जब आए थे यहाँ पर आप ढूंढ रहे थे, कब तक? नहीं, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कब तक ये, बिकॉज व्हेन यू वेंट टू यूरोप यू आर लुकिंग कि यार कहाँ मैं एक्सप्लोर करूँ, क्या करूँ. आपको दुबई मिला, आपने दुबई में शुरू किया, 5-6 साल हो गए आपको, है ना? यू थिंक दिस इज द लास्ट डेस्टिनेशन कि इसके बाद भी आपका जो एक्सप्लोर? नहीं भाई, वी हैव ऑलरेडी ओपनड अप आवर ऑफिस इन लंदन, सेंट्रल लंदन. लवली. एक्चुअली वी गोना इनॉग्रेट दैट ऑफिस वेरी सून. मैं डेट्स देखता हूँ अपनी, आता हूँ. हाँ. Totally my pleasure. And 15th of August we are launching our office in Moscow. Oh wow. Hmm. You'll be developing in Moscow, in Yes. your in Russia. Wow. Yes. So world domination का plan है. हाँ भाई, अभी तो है ये प्लान. यार देखो, सेटिस्फाई होके करना क्या है यार. जब तक आपका दिमाग चल रहा है, शरीर चल रहा है, काम करते रहो ना, क्या प्रॉब्लम है? तो BMW is fully your baby now. Me and Vivek, You're the two partners. two partners. Yes. Amazing. How did the partnership with Vivek happen? Because जब आपने बोला था कि brokerage firm का नाम था,
So basically, when I started this development, and 2.5 years back, I met Vivek through one of my common friend, and we discussed a lot, कैसे करना है, क्या करना है, and somehow we both were interested, and one day we decided, ठीक है, साथ में करते हैं. तो likewise other partnership भाई हमारी भी इस तरीके से ही थी. एंड अंकुश के साथ थी. अंकुश के साथ मेरा पुरानी दोस्ती थी. विवेक को मैं ज़्यादा टाइम से नहीं जानता था, बट बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा जान गया. और उसके बाद फिर मुझे लगा कि यार, और विवेक को भी लगा कि यार वी आर गुड फॉर ईच अदर फॉर बिजनेस. तो हमने कहा ठीक है भैया, चलो ये मतलब पार्टनरशिप करते हैं. एंड यू कैन सी भाई, लाइक वी आर ग्रोइंग लाइक एनीथिंग. So we should give credit to this partnership also. Awesome. विवेक के जो एफर्ट्स हैं, उसकी जो मेहनत है, और जो सारी चीज़ें हैं भाई, that is like I cannot explain in words. मतलब he's working very hard. Yeah? Of course, man. Awesome. Brother. Let's get out, bro. So this is it, huh? This is your baby. Yeah. We are here at the side of Aqua Arc. So this was our first flagship project of B&W. We launched this project like few months ago, and this is the site, as you can see that and I can see piling is going ahead. Groundwork हो चुका है काफी. Yeah, the shoring has been done, so we are doing the piling work right now. Okay. And after that we'll start moving up and through the tower cranes, and we are supposed to deliver this project by June 2027, so at least 2 years from here. Wow. 2 साल में ये project हम दे देंगे यहाँ पर. And और luxury means luxury. This is one of the projects, and this is going to be a luxurious project. आजकल लोगों का mindset क्या है जब वो कुछ खरीद रहे हैं property? देखिए भाई, ये जो एरिया आप डेवलप देख रहे हैं ना, जो भी हो रहा है बेसिकली, ये it is near to the it's like okay, you can see the building there. That's right? The building. The building has already been done, so now they are just completing it. I think that they can do it probably before 2027, but they're supposed to inaugurate this fantastic 2027. That will become the Las Vegas, as I told you. So basically यहाँ पे जितना भी एरिया आप देख रहे हैं ना, ये जो भी डेवलप होगा, यहाँ पे होटल्स की थोड़ी स्केर्सिटी होगी, तो people are looking to get some space which looks like a 5-star hotel. So residential भी जो हम बना रहे हैं, that will be kind of a 5-star hotel. Luxury, amenities, everything bhai, you can imagine of everything, like whatever you can think of, we are just getting it into the apartments. And your workers are working, it's hot. How important are your workers for B&W? Bhai देखिए, these are the key pillars of our organizations. Bhai, you cannot even stand here for more than 5 minutes. Yeah. It's too hot. It's like more than 40 degree, and you can see like not only workers, our engineers. And जब हम लोग आए यहाँ पर, I saw everybody's face. They looked at you. They were smiling. They're like, because you know you're here on the site. It must be encouraging for them every time you come here. उनका मोराल के लिए कितना सही होगा. I am amongst one of them. So मैं इनमें से ही एक हूँ, तो मेरे को तो मतलब ये सब परिवार है. अभी जो हम डिस्कशन अपना कर रहे थे, सब अपना परिवार है. It is beautiful, man. जब से you told me that island has started, the developments here, the kind of brands here, and you have 9 plots around here. This is just, what is the significance of this arc? So basically, this is island 4. There are this Salmarjan island comprised of 4 islands, 1, 2, 3, 4. That third island is Win totally. 1, 2 और 4 पे कंस्ट्रक्शन हो रही है. तो हमारे पास जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो सब 4 पे ही हैं. Okay. So in this island 4 we have 9 plots. So that all we have to deliver by 2027 before that one. And there is a space called Rock Central, which is like 5 minutes from here. It will be kind of a DIFC of Russell Khema. Oh, lovely. So like we have 12 plots there. मतलब I was पूरे टाइम हम बात कर रहे थे, but once you come here and you see it and you just see the scale and the beauty, it's so beautiful. I am just very excited. और 2027 में 2-3 साल ऐसे हो जाएंगे. Few days in a few months, I'm going to catch you. I'm going to sit with you, get some insight. But I thoroughly enjoyed this whole interview, bhai. Thank you so much, man. God bless you. Congratulations to you and Vivek.
Thank We you, just man. had a call with Vivek also. He's so excited. Yeah. And hope to see you soon, man. Thank you so much Pleasure, man. for being a part of the Dubai journey and best of luck. I World loved it, domination man. hone I wala loved hai. it. Just tell these guys also that the world domination, this is just the beginning. So Office after is opening this, in. we are going to London, Moscow, Kenya. Of course, we are there in India as well. भाई we will world domination तो नहीं बोलूँगा मैं अभी, but अभी कुछ बड़ा बाकी है भाई. Global level पे It is BMW like जा रहा है. it is like few percent of what we have already dreamed of. Thanks, Good man. to be here at ground zero with you, man. Best Thank you, of luck. man. Thank you See you so soon. much, man. Bye. See you, man.